स्पेशल थैंक्स टू अनुपमा, डॉक्टर अनुपमा पांडे मैम, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। सारे जो अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो फ्लावर्स जिसमें आपको दिख रहे हैं, ये सारा जो है मैम के सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए मैं पूरी मैनेजमेंट फैकल्टी टीम को एज वेल एज माई लवेबल वॉरियर्स, मैं इनको वॉरियर्स कहूँगा आज के लिए। ये मेरे टीम के बहुत ही बहादुर योद्धा है, जिन्होंने इतने आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत नहीं है, पिछले 1 महीने से हमारे इसमें दिमाग में आइडिया चल रहा था इस चीज़ों का। जो Dr. Bajrang sir and I want to reiterate my thanks to my Mr. Dr. Anupama ma'am. She provide various aids which are required during this project, and I want to thank all my team members, Anupam, Akash, Ashish, Mushraf, and all my juniors who are present there during the commencement of this project. I want to thank all my faculties which provide guidance and suggestion, because this is not a single-handed project. This requires a lot of teamwork, lot of sleepless nights. So here we can start. This is a hydroponics farming. Can I speak without mic? Yes, sure. Hydroponics farming. Basically, is a hydroponic farming. Why are doing the hydroponic farming? Because हम लोग के बीच में एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फार्मिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लैंड. But the problem is that during this COVID time, or the rapid increase in population, the population increasing day by day, but the land is decreasing, land is declining day by day. Why? Because there is acquisition of land into the non-productive. There various construction program, road transportation, and along with that, the land is declining day by day. So, but the need of food and all the resources is increasing day by day, and the land is decreasing. So we have to come with a modern idea, with a scientific idea, and hydroponic farming is the best idea in a vertical, or I can say urban farming, because this requires less space. As you see there, it's a less space. But if I talk practically, if I talk about, if I grow a tomato plant, if I grow tomato plant here, then I am making sure that if you are getting tomatoes within a month from a soil based plant, then you will get here in a 15 days. Reason? Can you tell me the reason? Why? Can you tell me the reason why? Okay, I am telling you the reason. बेसिकली जब हम लोग सॉइल्स में कल्टीवेशन करते हैं, तो सॉइल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है डीमिनरलाइजेशन का, जो हम लोग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, उसमें डीमिनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग मिनरल दे रहे हैं, प्लांट बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म में कभी मिनरल्स लेता ही नहीं है. इट रिक्वायर्स डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनिक प्रोसेस. So it's required a lot of time and lot of bacteria and lot of media factors. But here we are providing direct. Because in this reservoir we have mixed a lot of nutrient mixture, all the 17 micro and macro nutrients which are required to the plant to the growth from the initial stage to the harvesting stage. So here we are providing in inorganic form. So the time required into the demineralization is reduces. So the growth period of the plant is reduced by the half of the time. That's why the hydroponic farming is the best option to provide the food for the population in a minute time. So here are some of the things. You can see the hydroponic. Hydroponic is a method of growing plant without soil using nutrient-rich water. As I told you that we are growing the crop without the soil, but we are providing nutrient. Okay. हाइड्रोपोनिक हम लोग बात करें कि अर्बन कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट कोई भी अर्बन हो, उसकी कोई ना कोई रूट होती है ट्रेडिशन से जुड़ी हुई. सो इसकी जो रूट है ना, आपने कभी उसका नाम सुना है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. नो मैम, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन. इट्स 100 AD. इट्स अ बहुत पुरानी चीज है. 100 AD. आई एम टॉकिंग अबाउट द 100 AD. लेट अस मेक अ पिक्स ऑफ. आई थिंक आई हैव
I'm showing the evolution of the hydroponics. Hanging guard of a Babylon. It's a 37 to 100 AD. You can imagine the age. कितना पुराना है? तो वहाँ से hydroponic का उतना ही है नहीं? जितना भी आप देख रहे हैं ना, तो उसकी यहाँ पे units होते थे, algae structures पे form करते थे. वहाँ से ये जो concept है ना बहुत पुराना था. मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, but we have known the scientific, हमारे पास scientific method नहीं है उसको prove करने के लिए. तो Babylon हम लोग के जो एंसिस्टर थे जो भी थे तो उनके पास काफी प्रोसेस थे बट उनके पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी. हो गया है कहते हैं ना कैसे भी हो गया, कहते हैं ना तुक्का फिट बैठ गया, तो उनका तुक्का तो लग गया बट दे डोंट हैव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. आफ्टर दैट नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1960 और 1970s में. तो उनका क्या था कि जब वो स्पेस रिसर्च में जाते थे ना तो प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास उनको फूड अबंडेंसी होती थी. अबंडेंसी नहीं आई, हाँ अबंडेंसी ही होती थी क्योंकि वो ज़्यादा उसमें लोड ले जा नहीं सकता है. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेस में ही हाइड्रोपोनिक्स का एक एक्सपेरिमेंट किया था. क्यों ना हम किसी सॉइल लेके जाएंगे तो सॉइल हैवी होती है वाटर से, तो सॉइल वो लेके नहीं जा सकते. और सॉइल जो कल्टीवेशन होता है वहाँ पे ग्रेविटी फैक्टर भी काम नहीं करता है, तो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस काम ही नहीं करेगा. तो दैट्स व्हाई दे अडॉप्ट द हाइड्रोपोनिक कल्चर. तो उन्होंने यहाँ पे लेट मी शो दैट ये नासा की ओरिजिनल इमेज है. जो भी एस्ट्रोनॉट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक कल्चर बनाया, ठीक है. तो उसमें इन्होंने ऑर्गेनिक फैमिली लिया, फिर उसके बाद कमर्शियल अडॉप्शन हुआ 20वीं सेंचुरी में. फिर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑप्शन उन्होंने लाइट दिया. आपको लग रहा है कि लाइट मैंने एस्थेटिक्स के लिए लगाई है बट इसका एक रीजन है. बिकॉज प्लांट्स को लाइट चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस. फॉर द फोटोसिंथेसिस हम लोग लाइट्स का अडॉप्ट करते हैं. बेसिकली हम येलो लाइट्स का यूज करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है सनलाइट के लिए. हाइड्रोपोनिक्स की मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ. हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रिजर्वर है, यहाँ पे हमने पंप लिया हुआ है. हम क्या करते हैं ये अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपेरेंट क्यों लिया. मैं ट्रांसपेरेंट भी ले सकता हूँ. एनीबडी कोई है किसी के पास रीजन क्यों नहीं लिया मैंने? मैं बताता हूँ. एक्चुअली अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट लेता ना तो ये सनलाइट उस पे है. एल्गी का नाम सुना है आपने? इसको हम एल्गी फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे क्योंकि उसको क्या है ट्रांसपेरेंट में तो सनलाइट मिलती, ठीक है, उसको सारे वाइबल फैक्टर्स मिलते हैं. तो वो एल्गी ग्रोथ होती है जिससे मेरी प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है. एल्गी मेरे को चाहिए बट वो मेरे को अनग्रोइंग फॉर्म में चाहिए ताकि उसका जाके वो 100 रुपए का कल्चर देता है, एक पॉइंट का 100 रुपए का कल्चर देता है कि जाओ इसमें उगाओ. हमको सॉइल नहीं लेनी है, उसमें वाटर कंजर्व. अब कहते हैं वाटर कैसे कंजर्व हो रहा है क्योंकि पानी तो उसमें यूज हो ही रहा है. बट वो ये पानी जो है रिसाइक्लेबल है. अब मैं इसको जब ये रिसाइक्लेबल होगा ये चेंज होता रहेगा बट ये पानी हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं. जो आपकी गार्डनिंग सॉइल है उसमें पानी को उसमें कंसंट्रेशन को लो. यस मैम, अभी मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ. और अगर आपका जो क्वेश्चन है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हाँ अब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है अगर आपको नहीं करनी है मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन भी पैसा लगे. अभी मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि ठीक है एडवांटेज है लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत है. मैं ना इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको मेंटेनिंग चाहिए देखा मैं अभी मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ ना. अभी मैं डिसएडवांटेज पे आ रहा हूँ. इसके पहले फैसिलिटेट्स अ माइक्रो क्लाइमेट कि माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पे पूरा हो रहा है क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें एक्वा हाइड्रो और तुम्हारा क्या कहते हैं इको का तीनों का कॉम्बिनेशन है. प्रेडिक्टिबिलिटी एंड सीजनेबिलिटी ये सबसे मेन चीज है इसकी. प्रेडिक्टिबिलिटी एंड सीजनेबिलिटी इसकी मेन चीज है. क्या है ना हम जैसे आजकल का जो हमारा जो ट्रेंड है कि हम लोग को ना जैसे हम यहाँ ना अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना जैसे मान लो मैं सर्दी का मौसम और मेरे को मैंगो खाना है तो हालांकि अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे पॉलीफार्म्स है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कि अगर मेरे को अनसीजनेबल क्रॉप चाहिए नहीं है तो इसको मैं कंट्रोल्ड क्लाइमेट में ले जाके मैं वो कर सकता हूँ. और इसके सप्लाई चेन की जो है ना सप्लाई चेन जैसे मान लो मेरे को ट्रॉपिकल का कोई फ्रूट खाना है, टेम्परेट रीजन का फल मेरे को ट्रॉपिकल में खाना है तो वो ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा, ट्रक फार्मिंग से कुछ भी करके आ जाएगा. बट उसकी कॉस्ट और उसका सप्लाई चेन मैंने आज मंगाऊंगा तो मैं 3 दिन बाद आएगा. मेरे को तो अभी मेरे को अर्ज है कि मेरे को अभी खाना है ना, मेरे को क्रेविंग अभी हो रही है कि मेरे को ना अभी पीचेस खाना है बट वो अभी नहीं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है.
तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये इजी टू अवेलेबल है कि आप इसको घर पे रख सकते हैं। इसको कंट्रोल क्लाइमेट देके आप ग्रो कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर पीचेस का पेड़ तो इतना बड़ा हो जाता है, कैसे? बट आपको पता है कि नैनो करके एक नैनो सीडलिंग्स का कॉन्सेप्ट आया था टिश्यू कल्चर में, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज करते हैं। क्योंकि मैं इसमें ये नहीं चाह रहा कि ये 10 फीट का इसमें पेड़ लगेगा, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना ये हैंडल कर पाएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना प्लांटिंग एक कहता है ना, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसको जितना दोगे ना वो उतने में खुश है। अगर मैं उसको ओपन में लगा दूंगा वो जड़ अपनी फैला लेगा, और नहीं करोगे तो नहीं करेगा। क्रॉप्स ग्रो फास्टर, मैक्सिमाइज स्पेस, प्रोडक्ट हाई रिक्वायर लेस लेबर एंड प्रोडक्ट हाई क्वालिटी गुड। तो उसमें क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो हाई क्वालिटी होती है। अब लिमिटेशंस पे आता है, जैसे निवेदिता मैम ने मेरे को बोला एक्सपेंसिव टू सेटअप, पहले तो एक्सपेंसिव लगा था, नो डाउट, क्योंकि उसमें जितना भी कॉस्ट लगा है, बट ये वन टाइम इंस्टॉलमेंट है। 5,000 यस मैम। बट अभी आप इसको अमेजन पे लेने जाएंगे ना, यही आपको 25,000 का पड़ेगा। 25,000 मैम, उसका प्राइस क्या होगा वो आपकी मेंटेनेंस और आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, वो जो आपका 5,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो वन टाइम है। हाँ, मैम बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 साल तो आपको ब्रेकिंग स्टेज पे पहुंचने में लग जाएगा। अगर इस पे बात कर रहा हूं मैं, इतने से एरिया में आफ्टर 8 to 9 मंथ आप ब्रेकिंग स्टेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। बट उसके लिए आपको आपकी टाइप्स ऑफ क्रॉप से डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ जो आपने चूज किया और आपका मेंटेनेंस। और स्पेशल थैंक्स टू अनुपमा, डॉक्टर अनुपमा पांडे मैम, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि सारे जो अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो फ्लावर्स जिसमें आपको दिख रहे हैं, ये सारा जो है मैम के सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए मैं पूरी मैनेजमेंट फैकल्टी टीम को एज वेल एज माय लवेबल वॉरियर्स, मैं इनको वॉरियर्स कहूँगा आज के लिए, कि मेरे टीम के बहुत ही बहादुर योद्धा है जिन्होंने इतने आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन का मेहनत नहीं है, पिछले 1 महीने से हमारे इसमें दिमाग में आइडिया चल रहा था। इस चीज़ों का जो एक चीज़ इन्होंने अरेंजमेंट्स की है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को दिस क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैम कह रही थी कि आपको जान जाए, तो मुझे लगता है क्या कि मुझे जानना पड़ेगा आपको। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। मैंने एक मूवी देखी थी, अजय देवगन की एक मूवी है वंस अपॉन ए टाइम मुंबई, उसमें एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है आज आपको, या तो नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या तो नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या नाम लेते ही काम हो जाए।